Yes, friends, hope you are all fine. Friends, we have started with the topic reconstruction of partnership. And in the reconstruction of partnership, we have learned some concept. So let's see the topic. Right. I just written, but again I will just explain to you what does it mean. Friends, we have learned the first thing we have learned is regarding the sacrifice ratio. Then the sacrifice ratio formula is old ratio minus new ratio. That means if the answer is in plus, it indicates a sacrifice. Clear? And if the answer is in minus, it indicates a gain. In the same way, number 2, the formula is gaining ratio. Now, gaining ratio formula is new ratio minus old ratio. That means if the answer is in plus, it indicates a gain. And if the answer is in minus, it indicates a sacrifice. Right? So, these two concepts we have learned up to here. Now, today, friends, we are going to learn the concept of revaluation. So, again, I want to make you revise what does it mean. The first is sacrifice ratio. What is the formula? Old ratio minus new ratio. And answer is in plus, then indicates what? It indicates a sacrifice. And if the answer is in minus, it indicates what? It indicates a gain. In the same way, when we are going for finding gaining ratio, what is the formula? New ratio minus old ratio. That is, if plus, it's gain, and if minus, it's a sacrifice. So friends, we have done up to here. Now let's see the coming point. Now let's see the topic of revaluation. Now we are going to learn the topic of revaluation. This is the topic. So what is in the revaluation? Let's see. Some topics are there, right? We have to remember in that way. First case, when asset value is increased, or we can say when liability value is decreased. What they want to say, when asset value is increased and the liability value decreased, it indicates that there is a benefit to business. It indicates benefit to business. And if there is a benefit to business, we have to credit the which account, friends? Which account? Credit the revaluation account. Credit the revaluation account. This one. Right. Now it's not necessary that you get always benefit only. There may be loss also. Now the second case. Now what does it mean? When asset value is decreased. When asset value is decreased and liability value is increased, then what happened? It's not a benefit now, it's a loss. Loss to business. And if there is a loss to business, what we have to do? We have to do the debit. Which account? Debit the revaluation account. Debit the revaluation account. Clear, friends? So these are the main two concepts. So let revision make it, and we can revise one more time. The topic is revaluation. We have to understand that when the asset value is increased or the liability value is decreased, it's a benefit to the business.
we have to credit the revaluation. And if the asset value is decreased or the liability is increased, it's a loss to business. In that case, we have to debit the revaluation. Now, friends, you can see the first topic. Ready? Take your textbook also with you. Take on textbooks. So let's see. You can see is that machine is 80,000. Machine is 80,000, 1 lakh, sorry. Machine value is 1 lakh, but revaluation is 80,000. So asset value, machinery is an asset. So asset value is decreasing. So now it indicates a loss. So revaluation should be what? Debited, because it's a loss to us. Now you can see land 3 lakhs and increased to 5 lakhs. It increased to 5 lakhs. Now what is happened? Now we can say that the asset value is increased. If there is an increase, we can say gain also or benefit, one and the same thing. Gain is there. In case of gain, revaluation, we can do credit. Clear? Now you can see creditors. It's 1 lakh and 95,000. That means 1 lakh has come down to 95. So it's an liability. So what happened? Liability is decreased. If liability is decreased, again it's an gain. Liability decreased, gain. Gain means what? Revaluation credit. Now see, outstanding expense is there. So let's see outstanding expense. Now, in outstanding expenses, clear it's not a good one for us. It's a liability. Outstanding expense, it's a liability, and liability is increasing. We have to pay in the future period. So it indicates a loss, and if loss is there, revaluation, what we have to do? Debit. Now comes income receivable. Now income receivable, it's an income that will be received in the future. So it's now asset, it's increasing. That is gain. What we are getting? Gain. That is revaluation. It's credit. After plus minus, we get some answers, and that we have to transfer to the partners. So I think we are ready. So let's see, friend, first journal entry. Right, that is a note. When there is a profit to the firm, revaluation is credit. Whichever I written in the green, you can see that it's a profit. And whichever comes to the loss to the firm, it's debited. It's a loss. So friends, we are starting with the first entry. So what is the first one? First one is machinery. Machinery 1 lakh has come to 80,000. So it's a debit of 20,000. 20,000 का नुकसान है हमको. नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट. So our first entry, just 1 minute. Our first entry is revaluation account debited to machinery account, because it's a loss of 20,000, and narration also being machinery value is decreased. Being machinery value is decreased. Next one, number 2, land. Land is of 3 lakh. Land is of 3 lakh and it has come up to 5 lakhs. That means it's a profit
of profit, and when there is a profit, you can see that revaluation account, what we have to do, credit. So land account debited to revaluation account 2 lakhs, land account debited to revaluation account 2 lakhs. Then comes creditors. Creditors 1 lakh has come to 95,000. So now it's a gain, and revaluation, what we have to do, credit. So if the revaluation is credit, what we have to do, creditor should be debit. Creditors to revaluation 5,000, 5,000. Then comes outstanding expenses 3,000. It's a loss, so revaluation we have to do debit. So revaluation account debited to outstanding expenses. And the last one, income receivables, we have to receive the income. So income receivable account debited to revaluation 2,000. So just see one time, if any doubt. Right, there is only one way process now, right? Okay, so again I am repeating, that's why I am repeating one more time, so you will be more clear. So what happened, friend? The first is machine. मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अगर कम हो रहा है तो नुकसान, इसलिए आपकी फर्स्ट एंट्री आई रिवैल्यूएशन टू मशीन. क्लियर? जने लैंड 3 लाख का 5 लाख हुआ है. एसेट का वैल्यू बड़ा है. अगर एसेट का वैल्यू बड़ा है तो आपको फायदा है. इसलिए देखो, आपको इतना ध्यान रखना है कि नुकसान होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. बराबर? तो अब जरा देखते हैं. तो लैंड हो गया. क्रेडिटर्स भी कम हो रहा है. क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो फायदा है आपको. तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन को हमने क्या किया, क्रेडिट किया. फोर्थ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें भी हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है. तो वापस रिवैल्यूएशन, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट. अभी तो क्लियर हो गया होगा. इनकम रिसीवेबल, इसमें हमें फायदा हो रहा है तो अब ये रिवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. तो ये इसके मेन कंसेप्ट्स है. ठीक है? अब जो भी इसके आगे हम करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा. तो फ्रेंड लेट्स सी. अमर अकबर का सम याद है आपको? हमने क्या ढूंढा था, सैक्रिफाइस रेशियो हमने किया था. व्हाट इज द फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू. सैक्रिफाइस में आंसर अगर माइनस में आए तो गेन, सैक्रिफाइस में आंसर अगर प्लस में आए तो सैक्रिफाइस. सही है? यस. अब वापस सैक्रिफाइस, 3 पार्टनर का हमने ढूंढा, वैसे ही करना है. दीपक नीलेश, वो भी वैसे ही किया हमने. प्रवीण महेंद्र, ये भी हो चुका है. अब ये टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है. सो आई जस्ट मेक ऑन ऑल द एडजस्टमेंट. मैंने एडजस्ट करके ये एक सम बना दिया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए. देखो ऐसा लिखा है फ्रेंड्स, ऐसा लिखा है कि लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000. अब ये बताओ, ये जो लैंड है वो क्या है, एसेट है. यस. अब 1,80,000 से 2,50,000 करना है, मतलब 70,000 हमें बढ़ाना है. 70,000 हमें बढ़ाना है तो हमको फायदा हो रहा है. फायदा हो रहा है मतलब क्या करेंगे हम, यस, फायदा हो रहा है तो क्या करेंगे हम, एंट्री बोलो, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. लैंड बढ़ा कि नहीं, फर्स्ट एंट्री आएगा. देखो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. हाँ, अब इन्होंने साथ में एक और पॉइंट लिया है.
building value is to be increased by 50,000, increased by 50,000, 50,000 बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ चुका है, तो भी फायदे की बात है, तो उसमें भी हमको फायदा हुआ है। तो बिल्डिंग में भी हम कितना लिखेंगे 50,000 और टोटल करके हम कितना लिख देंगे 1,20,000। सही है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000, 80,000 कर दो। अब है कितना 1,20,000। अब एसेट का वैल्यू जो है वो कम करने को बोला है। एसेट का वैल्यू क्या करना है, कम करना है। कम करेंगे तो फायदा नहीं है, क्या है, नुकसान है। तो बोलो नुकसान में क्या एंट्री पास करेंगे हम? यस, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। देखो सेकेंड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 40,000, 40,000। थर्ड में ऐसा लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिड्यूस्ड 30%। रिड्यूस करो, 40,000 है ना, उसको 30% से कम करो, यानी 12,000 कम करना है। अब वापस वही चीज आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट फिर से क्या है, एसेट है। एसेट को कम करना है, कम करना है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 12,000। Provision for bad debt reserve of 20% and discount reserve of 5% is to be made on debtors 50,000। तो देखो बैड डेट रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व दोनों से हमको नुकसान होता है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का 20%, बोलो कितना आ रहा है 10,000। अब कितना बोला था 50,000 था, तो एज पर फाइनल अकाउंट 10,000 माइनस होगा तो 40,000 आएगा। उस 40,000 में से 5% देंगे। अब 40,000 का 5% कितना होता है 2,000, यानी हमको दो जगह एंट्री करनी, मतलब दो की एंट्री करनी और दोनों नुकसान। तो देखो फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 12,000 to bad debt reserve 10,000 to discount reserve on debtor 2,000। बराबर, क्लियर हुआ? आगे है स्टॉक ऑफ 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। 15,000 का जो स्टॉक है, अब स्टॉक भी एसेट होता है, उसको 20% कम कर दो। 20% कम कर दो मतलब रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। An amount of 20,000 is not to be paid to creditor। क्रेडिटर को पैसे नहीं देने। अब क्रेडिटर कौन है ये बताओ? यस, क्रेडिटर है अपना लायबिलिटी। लायबिलिटी को पैसे नहीं देने हैं, नहीं देने हैं मतलब आपको फायदा हो गया। फायदा हो गया है मतलब एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 20,000। चलो 3,000 for outstanding expenses and 2,000 for income receivable is not record in the books। रिकॉर्ड ही नहीं है तो अब हमें सोचना है 3,000 हमें देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें देना है। देना है मतलब हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए नुकसान है। तो एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। 2,000 ऑफ इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है। अब इससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा मतलब क्रेडिट में जाएंगे तो वहां क्या लिखेंगे, इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन 2,000। ये लास्ट एंट्री जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो हेडिंग दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हेडिंग दो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं लग रही है, आप कर पाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉलम तैयार करो, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी लिखना है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, particulars amount, डेबिट क्रेडिट। चलो शुरू करते हैं। अब आपकी जर्नल एंट्री के हिसाब से हम चलेंगे। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो लेजर हम बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन के किस तरफ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो बाय लैंड अकाउंट, क्रेडिट में लिखो ऐसे, बाय लैंड अकाउंट 70,000, फिर लिखो बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000, बाय लैंड अकाउंट 70,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। चलो ये होने के बाद है मशीनरी, ये क्या है, मशीनरी। अब रिवैल्यूएशन इसमें क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में पहुंचो। डेबिट में लिखो टू मशीनरी, टू मशीनरी, हाउ मच, 40,000, 40,000। बोलो अब समझ में आया, मतलब क्या करना होता है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है, डेबिट है तो डेबिट में लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब थर्ड में देखो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट में पहुंचो। डेबिट में लिखो टू इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 12,000, 12,000, 12,000। फिर वापस रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 12,000 से, वापस डेबिट हुआ है, तो डेबिट में पहुंचो। टू बैड डेट रिजर्व, टू डिस्काउंट रिजर्व। फिर रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट हुआ है, तो डेबिट में आओ। टू स्टॉक 3,000। अब रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आओ, बाय क्रेडिटर्स 20,000। अब यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो डेबिट में आओ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझ में आ रहा है, मतलब डेबिट डेबिट में लिखना है, क्रेडिट क्रेडिट में लिखना है। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में लिखो, बस। अब चलो फ्रेंड्स इसका फाइनल टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड आई थिंक इज मोर, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो लीव अराउंड 5 to 6 लाइन और टोटल करो, द टोटल कम्स टू यू 1,42,000, 1,42,000 का टोटल आएगा। करो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी करो। 1,42,000, वही टोटल अब सामने भी लिखोगे 1,42,000, 1,42,000 माइनस करो तो यू गेट अ गैप ऑफ 72,000, माइनस करो तो आपको गैप आएगा 72,000, और हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है, राजेश, पुष्पा, प्रतिभा, राजेश, पुष्पा, प्रतिभा। और कौन सा रेशियो, रेशियो आपको क्वेश्चन में देखना है। आई थिंक 2:3:1 क्वेश्चन चल रहा है, यस 2:3:1, तो बांटना है 2:3:1, यानी 72,000। कैसे करेंगे पता है आपको, 72,000, राजेश का ढूंढ रहा हूं मैं, राजेश, 72,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 24,000, ये हुआ राजेश। पुष्पा का 72,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आपको आएगा 36,000। फिर आएगा प्रतिभा 72,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आएगा 2, 3, 1/3, 24,
हाफ 36 ये बराबर यस राइट है 12,000। तो रेशियो इसका है 2:3:1 यानी आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, मैंने लिखा नहीं था इसलिए। सो फ्रेंड्स ये रिवैल्यूएशन का है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, पूरा रिवीजन वापस एक करवा रहा हूं तो आपको पूरा ध्यान। हाँ तो देखो हमने पढ़ा फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन के बारे में। क्या मैंने बताया, बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपको। एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एसेट घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो डेबिट है तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। टोटल किया हमने क्रेडिट का, वही टोटल सामने लिखा हमने, उसमें से माइनस कर दिया हमने। जो गैप आता है वो किसको देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ABC के नाम से मैंने पहचाना है, जो नाम दिया है उसके हिसाब से। तो ये रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है। उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले हमने देखा फर्स्ट कंसेप्ट हमने देखा सैक्रिफाइस रेशियो। क्यों मैं इतना बोल रहा हूं, क्योंकि इसका वेटेज 3 मार्क्स है, 3 मार्क का सम आएगा आपको 3 मार्क्स का। वैसे ही गेनिंग रेशियो वो भी 3 मार्क्स का आएगा। और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री और एक कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये 3 मार्क का एक 100% सम आता है और बहुत इजी है। तो बोलो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट क्या है, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट, एसेट बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो भी क्रेडिट, राइट। ये बहुत बार अब मैंने आपको बताया, क्योंकि वो कंसेप्ट अगर नहीं आएगा तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम आएगा। वही एसेट अगर घटेगा डेबिट, वही लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। तो ये कंसेप्ट है इसके, ओके। अब ये बताओ सैक्रिफाइस में आंसर अगर माइनस में आए तो क्या आएगा, गेन। सैक्रिफाइस में आंसर अगर माइनस में आए तो गेन, और गेन में आंसर अगर प्लस में आए तो गेन। सैक्रिफाइस में आंसर प्लस में आए तो सैक्रिफाइस, गेन में आंसर अगर माइनस में आए तो सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, राइट। तो हमने आज बहुत सारी चीज देखे, मशीन के बारे में दिखाया, लैंड के बारे में बताया, क्रेडिटर्स के बारे में बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब हमने आज किया, राइट। फिर मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करवाया। Just 1 minute। जर्नल एंट्री के बारे में सिखाया, उसमें मैंने क्या समझाया आपको, बताया ना आपको, जहां नुकसान है वहां हम डेबिट करेंगे, जहां फायदा है वहां उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको करना है 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 10 क्वेश्चन भी अपना रिवैल्यूएशन तक हो चुका है। अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें आपको बैलेंस शीट आफ्टर इवैल्यूएशन भी बोला है, यानी बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये कंसेप्ट करेंगे। ओके देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।